Hi guys, good evening. Welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. I hope all of you are doing well. Myself, Juhi Sharma, and we do the YouTube economics session that is for class CBSE, right? On Mondays and Fridays for class 12th, right? So on Mondays and Fridays for class 12th, we do the YouTube economic sessions, and for class 11th, we do it on Wednesdays. Okay. So, guys, next week, that is the next session, which we'll be having on Monday. In that particular session, we will be solving a sample paper, right? So, in the Monday session, we'll be solving a sample paper. Monday, we'll be solving a practice paper. The entire practice paper of 40 questions we will be solving live. So make sure to attend that so that you know the nuances and how it's going to be, how the paper is going to conduct it and everything, right? So without wasting much of your time, if you haven't watched the previous sessions, please go to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep, and there in the playlist section, you will find a playlist which is by the name CBSE Economics Special, right? And in that, you can just look up to all the previous sessions or previous videos that we have had, right? So now let's do the next topic, that is demonetization and GST. So if you remember of 2016 and 2017, these were the two highly discussed topics, right? Demonetization and GST. Before that, I think very few of us have heard of what is demonetization or what is GST. हम सिर्फ textbooks में पढ़ते थे, right? GST का तो वैसे भी नहीं पढ़ते थे because GST wasn't implemented उससे पहले, right? So all the things which are related to demonetization, which are related to GST, will be covering up in this topic. Okay. So we all know that in 2016, what happened was demonetization of currency took place. Basically, the 500 and 1000 old series, Mahatma Gandhi rupee note of old series, they got demonetized, and in replacement of that, new currency got launched, right? So yes, everything related to that we'll be covering in this session, right? Now, moving further to know what exactly does demonetization means, okay? What is demonetization? Demonetization is something when a currency which is in the existence, whenever that currency is withdrawn, right? Of course, the government takes it. तो जब भी आपकी government या जब भी आपका कोई भी existing currency से withdrawal हो जाता है from the economy, right? And उसकी जगह नई currency introduce होती है. That is demonetization. Okay, that is demonetization. What is it? It refers to the withdrawal of existing currencies and introduction of new currencies in its place. If you remember, हमारे old series के जो 500 के notes थे और जो हमारे 1000 के notes थे, these two notes got demonetized, right? तो ऐसा नहीं है कि 2016 में ही सबसे पहली बार हमारा demonetization हुआ था इंडिया में. No. 2016 May was the third time when demonetization took place in India, right? In 2016, that was the third time when demonetization took place in India. उससे पहले first time when demonetization took place, it was in the year 1946. That is even before our independence, right? So in the year 1946, the first demonetization took place, right? Second, in the year 1978, demonetization took place, and the third time in the year 2016, the demonetization took place. Now, this is very important because this is the most recent or the latest one, right? So you need to know that in 2016, our Prime Minister was Shri Narendra Modi ji, and he banned the old series, the old Mahatma Gandhi series of rupees 500 and rupees 1000 notes, right? And in its replacement, he issued 500 ka new series note and 2000 rupees ka new note, right? So you all know that हमारा pink color का नया 2000 रुपये का नोट आया था, और demonetization जब हुआ था तो क्या situation थी, banks के बाहर इतनी लंबी लंबी lines लगी हुई थी because लोगों को लग रहा था कि government time नहीं देगी notes से करने का and stuff.
बट येस एवरीबडी गॉट टाइम. हाँ ऑफकोर्स अगर किसी के दादी ने या किसी ने भी अगर बहुत ही ज्यादा कहीं पैसे छुपा के रखे हुए हैं, कहीं आपके किचन के किसी डब्बे में छुपा के रखे हुए हैं वेयरएवर, राइट, सो इन दैट केस बाद में लोगों के बहुत सारे नोट्स निकले थे. लेकिन जो भी सारे नोट्स थे, देयर वाज अ विंडो व्हिच वाज गिवन टू द पीपल और द पब्लिक बाय द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट. उस विंडो के में दे कैन एक्सचेंज द ओल्ड नोट विद द न्यू नोट्स, राइट. And with immediate effect in 2016, ये exchange जो था that was possible, right? Now you might feel like उस time पर आप लोग बच्चे हो गए, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, but you might feel like कि what are basically the aims and objectives of this demonetization? इस demonetization के बेसिकली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला जो एम और ऑब्जेक्टिव आया इस डिमोनेटाइजेशन का, दैट वाज कि ब्लैक मनी को हटाना है, ब्लैक मनी निकालना है, बिकॉज करप्शन ये सारी चीजें, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में था, तो उसको कर्ब आउट करना है. दैट वाज द फर्स्ट रीजन और द फर्स्ट एम ऑफ demonetization or the first objective of demonetization, right? Second was to control inflation. बहुत ही ज्यादा प्राइस हाइक हो रहा था एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि मनी सप्लाई को हम कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई का ध्यान रखते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, राइट. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन व्हाट हैपेंड, डिमोनेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था. नाउ थर्ड इज जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, स्मगलिंग्स एंड ऑल जो भी हो रही है जिस भी चीज की ऑफ इलीगल आइटम्स, उन सबके फंड्स का फ्लो रोकने का, that was another one of the main objectives of main objectives of demonetization. उसके बाद नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद होगा अभी भी जो चलता है वो ये है कि डिजिटल इकोनॉमी, राइट, अभी भी चलता है वो क्या है, दैट इज द डिजिटल इकोनॉमी. हमें अपनी सोसाइटी को, हमें अपनी कंट्री को डिजिटल करना है, टू मेक द कंट्री डिजिटल, to digitize the economy. That was another one of the main objectives or aim of demonetization, right? Cashless society, cashless economy. और तभी आप देखो आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा कार्ड्स एंड पेमेंट्स करते हैं बाय यूजिंग यूपीआईज एंड एवरीथिंग, राइट. कैश पेमेंट्स बहुत कम करने लगे हैं लोग, राइट. नेक्स्ट वाज to ensure the reduction in tax invasion. बहुत लोग जो थे वो टैक्स इन्वेड कर देते थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, राइट. तो उससे मेक श्योर करने के लिए कि भाई डिमोनेटाइजेशन आ गया तो एटलीस्ट जब करेंसी निकलने वाली होगी तो एटलीस्ट लोग उस डर से टैक्स इन्वेड नहीं करेंगे एंड दे विल पे देयर टैक्सेस. एंड जो हमारा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम? फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में अगर आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है, जमींदार्स के थ्रू भी लोग पैसे लेते हैं, राइट. कमिटीज एंड ऑल होती है जिनके थ्रू पैसे लिए जाते हैं. बट ये क्या है, जो हमारा जो प्रॉपर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, हमारा प्रॉपर जो लीगल बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उससे सेविंग्स को चैनलाइज करना, राइट. दैट वाज अगेन one of the main aims or objectives of demonetization, right. Now moving further to the impact of demonetization. जो demonetization हुआ, जो हमारी इकोनॉमी में करेंसी जो हमारी आपकी रिप्लेस हुई, बैन हुई पहले, उसके बाद रिप्लेसमेंट आया उसका. So what was actually the impact of that, right? जो सबसे पहला इम्पैक्ट जो था वो क्या था कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई थी. इफ यू रिमेम्बर, आप लोग तो खैर उस वक्त छोटे क्लासेस में होंगे, काफी छोटे होंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी में जो थी उस टाइम पर वो काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों में, बिकॉज लोग श्योर नहीं थे. people they didn't had the surety, people they didn't had the clarity also कि actually how it's going to work, right. So it actually slowed down the economy and the growth process है of both the forces of demand and supply. जो market forces है demand and supply के, that is market forces हैं of demand and supply, दोनों की ही क्या हुआ, दोनों ही बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया, right. सेकेंड जो था, जो भी हमारा ब्लैक मनी था, जो भी हमारी इलीगल मनी था, राइट, या जो भी मनी हमारा लीगल एक्टिविटीज से आता था, उन सब का डिक्लाइन हुआ. मतलब जो मनी करप्शन के थ्रू आया या फिर जो भी ब्लैक मनी था, राइट, जिसपे टैक्स नहीं दे रहे थे लोग, उसके स्टॉक में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ, बिकॉज लोगों को लगा कि बाद में तो ये सारा पैसा क्या है, ये सारा पैसा सिर्फ पेपर है, राइट, इट विल हैव नो वैल्यू, है ना.
तो जो भी सारा ब्लैक मनी था इट डिक्लाइन। ओके, क्या हुआ, उसका स्टॉक डिक्लाइन कर गया। उसके बाद इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स, लोगों ने बैंक में बहुत ज्यादा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको अगेन उनको पता नहीं चला दैट हाउ दिस डीमोनेटाइजेशन और हाउ द इकोनॉमी इज गोना रन, राइट? दे weren't able to or they weren't sure that how it's going to work, and that's why the safest option which they saw was to deposit their money into the bank, right? So bank deposit bahut zyada badh gaye, increase in bank deposit हुआ, that was again one of the major impact of demonetization, right? उसके बाद आपका जो था, हमारे जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, वी नो हमारे काफी सारे टैक्स होते हैं, वी हैव डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्सेस है, उसमें काफी ज्यादा स्लो डाउन हुआ, राइट? बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन द कॉर्पोरेट टैक्सेस टू। क्यों इतना ज्यादा डिक्लाइन हुआ? व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स द मार्केट वाजंट वर्किंग एंड सब। तो ये सारी चीजें हैड, और ये सारे वर द major impact of or had the major impact of demonetization in the economy, right? So आज मैंने आपको बताया था we'll be doing two topics, demonetization and GST. So now we'll start with the second topic of the day, that is GST. For term 1, demonetization के लिए आपका सिर्फ इतना ही important है। Let's start with GST, that is goods and service tax. Okay. Now goods and service tax, अगर आपको याद होगा, ये गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था इन द ईयर 2017। लोगों ने काफी ज्यादा बातें की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर कि उन्होंने पहले करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया, एक साल बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नया तरीके का टैक्स लगा दिया जिसका नाम है जीएसटी। तो पीपल हैड कंफ्यूजन, राइट? बट व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज, just understand, it is a value added tax, right? First of all, let me tell you कि GST का full form क्या है? By now तो you all must be aware of that. GST is goods and service tax. Simple सी बात समझो, goods and service tax में है तो क्या होगा आपका? Of course ये goods and services पे लगेगा, right? तो ये एक आपका indirect tax है। GST is what? It is an indirect tax, राइट? ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये क्या वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि किस पे लिवाइड होता है? इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, राइट? कंज्यूमर्स इसको पे करते हैं, बट it is remitted to the government by the businesses which sells goods and services. मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी आपके स्टोर्स हैं, ब्रांड्स हैं, आपके होटल्स हैं, इन सब का ना जीएसटी नंबर दिया हुआ होता है ना? आप कैफेज एंड ऑल में जाते हैं, वहां पे उनका जीएसटी नंबर दिया होता है। आप नॉर्मल शॉप्स में आते हैं, जीएसटी नंबर डालते हैं, राइट? क्या है वो कि हम कंज्यूमर्स जो है वो एक तरीके से जीएसटी पे कर रहे हैं ऑन व्हाट एवर गुड्स एंड सर्विसेज वी आर टेकिंग, एंड वो जो बिजनेसेस जो ओनर्स हैं या फिर जो बिजनेस सेलिंग जो लोग हैं, वो उन जीएसटी का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किसको दे रहे हैं? दे आर गिविंग इट टू द गवर्नमेंट, right? It is remitted to the government by whom? By the business selling goods and services. Okay. Now मैंने क्या बताया आपको? That GST is an indirect tax जो किस पे लगता है? On the supply of goods and services. Excuse me. Now GST Act, that is government that is Goods and Service Act जो है, ये आपका पार्लियामेंट में पास हुआ था ऑन 24 मार्च 2017। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टर्म 1। ऐसी चीजें, ऐसी इंट्रिकेट चीजें लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, बट it came into effect from 1st of July 2017. So you need to read the language of the question properly, whether they're asking that when was the GST Act passed in the parliament, or whether they're asking that it came into effect from which date, right? So the act got passed in the parliament in the year 24th March, in the month of March, that is in 24th March 2017, and it came into effect from 1st of July 2017, right? जब तक आपका जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट हुआ था, उससे पहले बहुत सारे आपके टैक्सेस होते थे। सेंट्रल टैक्स होता था, स्टेट टैक्स होता था, लोकल एरिया के टैक्सेस होते थे आपके। लेकिन अब क्या है, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? वो सारे के सारे आपके आते हैं अंडर जीएसटी। सो ऑल दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नाउ सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। इसीलिए
किस बेसिस पर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी? द प्रिंसिपल इज वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक टैक्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, राइट? तो ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आपके सेंट्रल, लोकल, स्टेट टैक्स होता था, वो सारा किसके अंदर आने लगा? ऑल दीज आर अंडर जीएसटी, राइट? नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ जीएसटी. हम जीएसटी का फीचर्स देखते हैं. द फर्स्ट फीचर इज दैट इट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इसमें काफी सारे जो टैक्सेस हैं, काफी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारे मर्ज्ड हैं, right? It is a comprehensive indirect tax, and इसमें most of the indirect taxes are merged, right? Second thing you need to know is that it is a multi-stage tax, and it is proposed to be levied at all the stages. As in, ये आपका मल्टी स्टेज टैक्स है. ऐसा नहीं है कि आपने आपके एक ही स्टेज पे टैक्स लेगा, या फिर अगर आप एज अ कंज्यूमर कुछ खरीद रहे हो तो केवल वही एक स्टेज है जिस पे जीएसटी लगेगा. नो, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, एंड ये अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग स्टेजेस पे जीएसटी जो है वो लगता है. अलग अलग जगह क्यों लगता है? आपको पता है पूरा का पूरा हमारा सप्लाई चेन है, राइट? सप्लाई चेन कैसे है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना सामान बनाता है, फिर वो अपना मार्केट में जाता है, वो होलसेलर को देता है, होलसेलर अपना रिटेलर को देता है, रिटेलर अपना शॉपकीपर को देता है. तो ये पूरा जो सप्लाई चेन है, ये पूरे उस सप्लाई चेन पे इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. व्हाई? बिकॉज एट ईच स्टेज इट एड्स वैल्यू, right? So it does the value addition at each stage of supply chain, correct? Now next is that it is a destination based tax, as in ये it will have jurisdiction over the place of consumption. जहां पर चीजों का कंजम्पशन हो रहा है वहीं पे the tax authorities will have the jurisdiction over the place of consumption. वहीं पर क्या है? वहीं से they can collect the taxes. So these are the features of what? These are the features of GST. Now moving further to the objectives of GST. GST तो आया, ठीक है, GST implement हुआ 2017 में आपका GST आया, राइट? जुलाई 2017 में GST आया, बट इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर आपको पता है, अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टाइप के टैक्सेस लगते थे. आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, आपका स्टेट टैक्स लगता था, कुछ लोकल एरियाज के टैक्स लगते थे, राइट? सो इन सारे मल्टीपल टैक्सेस को जो एलिमिनेट करने के लिए, राइट, to eliminate these multiple taxes, आपका GST जो था, GST implement किया गया in the year 2017 in the month of July. 1st of July को GST was implemented, right? Second जो है tax जो था, टैक्स बहुत ही ज्यादा आपका कह सकते हो कोई देता था कोई नहीं देता था, राइट? सो टू इम्प्रूव दैट, टू इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंस, ये चीज जो थी आपकी जीएसटी केम इनटू इफेक्ट. इसीलिए दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी. जीएसटी के आने के बाद टैक्सिंग का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेटर हुआ, राइट? अननेसेसरी टैक्स नहीं है, तो इसलिए इट ऑल्सो गेव अ लॉट, और इट ऑल्सो बूस्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके बाद नेक्स्ट है जिससे कि बिजनेसेस अपना बिजनेस इजी तरीके से करें, राइट? पहले क्या था, बहुत टाइप के टैक्सेस है, ये टैक्स है वो टैक्स है, लोगों को समझ भी नहीं आता था. बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज दैट कि बिजनेस जो है वो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो इजीली बिजनेस किया जा सके. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि टैक्सेस बहुत जगह से जा रहे थे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और ये आपका क्या था, कोई फिक्स नहीं था, राइट? सो इट ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन. बहुत ज्यादा टैक्स जा रहा था, सो इट ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन. एंड जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे आपका सेंटर का है, स्टेट का है, यूटी का है, लोकल एरिया का है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ही टैक्स के अंडर में आ गए, ये एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आ गए, एंड दैट वाज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी, right? All these taxes came under the umbrella of GST, right? All the indirect taxes, correct? Now moving further, we have the slide wherein we'll discuss about कि GST के अंदर मेजरली कौन कौन से टैक्स आए हैं और GST में कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज नहीं किया गया है, राइट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से बहुत ज्यादा आ जाते हैं. दैट व्हाट ऑल टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी के अंदर आपका सबसे पहले जो सेंट्रल टैक्सेस जो आए हैं वो कौन कौन से? आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आए हैं,
सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ये तीनों आपके सेंट्रल लेवल के टैक्स आपके जीएसटी के अंदर आके। बेटा पहले क्या होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग लगता था। लेकिन अब क्या है, अभी सारे जीएसटी के अंदर आ गए हैं। स्टेट लेवल टैक्स, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, हर स्टेट में अगर आप देखो, पहले जो होता था वो क्या था, हर स्टेट में आपका, अगर आप एंटरटेनमेंट टैक्स एज एन जो मूवी थिएटर्स का जो आपका प्राइस है टिकट का, वो हर स्टेट में डिफर करता था। दिल्ली में अलग होगा, एनसीआर रीजन में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा। सो इट डिपेंडेड अपॉन द स्टेट, स्टेट कितना फिक्स कर रही है, राइट। बट अभी एंटरटेनमेंट टैक्स भी किसके अंदर आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आ गया अंडर जीएसटी। ईशान, यू आर क्वाइट लेट। बेटा ये मैं आपको क्लास में सेशन स्टार्ट करने से पहले ही बता चुकी हूँ कि मंडे को हम पूरा का पूरा आपका सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ईशान, आई होप दैट्स गुड विद यू। We will discuss the entire sample paper on Monday, right? हमारा जो मंडे वाला सेशन होगा 40 questions. I'll be solving a sample paper with all of you guys, and उसके बाद we will be uploading the MCQ classes, because मंडे वाले वीक के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा नेक्स्ट मंडे ही होगा, because of course it is Diwali, right? So yes, we'll be doing those. Okay, we won't be solving MCQs as such. Let the sessions get over, the topics get over, because after this topic we are left with just one another topic, right? इस topic के बाद हमारे सिर्फ एक यूनिट बचा है, उसमें हार्डली 2 टॉपिक्स होंगे आपके, उसके बाद we'll be doing that, right? अब लेट्स सी कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। So the taxes which have not been merged with GST is custom duty, हमने GST में ऐड नहीं डाला है। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका जो टैक्स लगता है वो आपका जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। अल्कोहल ड्रिंक्स, अल्कोहल पर आपका जो भी आपका टैक्स लगता है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड, एंड जो भी आपका लोकल बॉडीज टैक्सेस लगाते हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन GST. So these are the taxes which have not been merged with the goods and service tax, right? Now, moving further, we have types of GST. अब हमारे GST के भी कुछ टाइप्स हैं, राइट? कैसे कैसे टाइप्स है हमारे पास। अगर आपने कोई भी, आप कहीं पे भी जाते हो, आप कोई भी बिल लेते हो, वहां पर आपने देखा होगा यू हैव CGST का अलग लिखा होता है, SGST अलग लिखा होता है, IGST अलग लिखा होता है, राइट? आपने जरूरी देखा होगा अगर आपने कोई बिल देखा है तो। What is CGST? CGST is Central GST, right? जो कौन कलेक्ट करता है, कौन लिवाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट CGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, वही कलेक्ट करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उसमें आपका CGST जाता है, जो कि कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो जाता भी किसके पास है टैक्स, वो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में लग रहा हो, इन एनी स्टेट अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड टाइप का जो आपका टैक्स आता है दैट इज SGST, विच इज स्टेट GST, राइट? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा एज द नेम सजेस्ट, ये आपका इंट्रा स्टेट होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रा स्टेट। व्हाट इज इंट्रा स्टेट? हर स्टेट में अलग होता है, मतलब एक ही स्टेट का होता है। एज इन अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो आपका हरियाणा स्टेट का SGST लगेगा, ठीक है? ये कौन लिवाई करता है? लिवाई करती है आपकी गवर्नमेंट, ओके? एंड आपका कौन कलेक्ट करता है? कलेक्ट अगेन आपकी करती है स्टेट गवर्नमेंट, राइट? स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। Congratulations, Manan. Yes, I remember your name, of course. I remember your name. Thank you so much, Naman. Thank you. Congratulations. God bless you, beta. You have got into SSCBC. That is Shahid Sukhdev College of Business Studies. Very good. Now, coming back to SGST, as I have told you that it is levied and collected by the state government, और आपकी within a state होता है, मतलब अगर हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, राइट? अगर एक जगह आपका किसी भी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उन गुड्स एंड सर्विस का, तो वो SGST आपका जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? उसके बाद आपका आता है यूनियन टेरिटरी GST, which is also known as UTGST. अब ये UTGST क्या होता है? ये UTGST होता है
जो GST आपका लगता है ऑन द ट्रांजैक्शंस विच इज बीइंग कंडक्टेड, और जो भी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रही है इन द यूटीज, 5 यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज योर चंडीगढ़, योर लक्षद्वीप, योर दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार, इन 5 यूनियन टेरिटरीज में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वहां पर जो जीएसटी लग रहा है यूटी जीएसटी, वो आपका किस में होता है, वो आपका जाता है एज यूटी जीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी. ओके, इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज transactions that take place in any of the 5 union territories of India, or वो 5 union territories I have already told you, right? Now integrated GST क्या होता है? Integrated GST is interstate GST, right? Integrated GST is interstate GST. Interstate GST कैसे? ये applicable होता है between 2 states, right? तो कभी भी 2 states के बीच में अगर आपका IGST लग रहा है, that means कोई 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इसके ट्रांजैक्शन में, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो हरियाणा एंड पंजाब जैसे इन्वॉल्व है, राइट? तो कोई 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में, तो उस केस में क्या लगता है? आपका IGST लगता है, विच इज अ इंटीग्रेटेड GST, विच इज इंटरस्टेट, 2 स्टेट्स के बीच में आपका ये GST लग रहा है, राइट? सो दीज आर द 4 types of GST. We have central GST, we have state GST, we have union GST, and we have integrated GST. I think बाकी state आपको clear होगा, central clear होगा obviously, integrated GST आपको clear होगा जो 2 states के बीच में लग रहा है, interstate. Union GST में याद रखना, we talk about only 5 union territories, which I have already explained you. We talk about Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, then आपका लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड देन वी हैव चंडीगढ़. सो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी जो है, इट टेक्स और दिस वन, राइट? Manan, for that I would request you to raise a PSI query and you will get all the details over there, right Manan? You will get all the details over there. Just raise a PSI query regarding that, okay? Now, moving further to the advantages of GST. अब GST के advantages क्या क्या हैं? अभी तक हमने objective पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, but let's see that what are the advantages of GST. पहला है कि इसने हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया है, राइट? इट हैज बूस्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? जीएसटी क्या है? इट बूस्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ. पहली चीज, इसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया. दूसरा क्या? ये आपका सिंगल टैक्स है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, अ सिंगल टैक्स जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, राइट? बिजनेसेस इसकी वजह से बहुत इजीली होने लगे. इट इज अ सिंगल टैक्स व्हिच हैज लेड टू द ईज ऑफ बिजनेस डूइंग फॉर एंटरप्राइज. ठीक है? जीएसटी है तो इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से जो कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा है जीएसटी के थ्रू. बिकॉज पहले क्या था? पहले बहुत ज्यादा आपका अनइवन टैक्सेशन था, बाहर से भी लोग आकर थोड़ा सा मे बी दे गेट कॉन्शियस ऑफ व्हाटएवर, बट अब क्या है? दे आर मोर अट्रैक्टेड विद जीएसटी. द फॉरेन एंटिटीज आर मोर अट्रैक्टेड और दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया. Next is what? That it has ensured a better tax compliance. अभी क्या है? That people are paying taxes nicely. अभी people जो है those are paying taxes. अभी better हो गया है आपका tax compliance. अभी tax invade होता है but उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं लोग, because everything is what? Everything is on records, right? Everything is getting recorded. Okay. Now the cascading effect of GST has led to the reduction in the cost of goods. अब जो आपका जो ये effect of GST है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी जो है, उससे क्या हुआ? आपका जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो गए, बिकॉज एट एवरी स्टेज द प्राइसेस आर इन चेक, बिकॉज जीएसटी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो प्राइसेस का पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहा है. सो उससे क्या है? आपका गुड्स का कॉस्ट में थोड़ा रिडक्शन है, राइट? सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, राइट? विद दिस वी हैव कवर्ड the topic GST and demonetization. Now in the next session, which is on Monday, in that particular session we will be solving a practice paper
I'm expecting you all to be, I'm expecting you guys to be here. We'll be solving a practice paper on Monday, wherein we'll be doing a practice paper कह सकते हो आप इसको mock paper कह सकते हो, right? We'll be doing that live. And yes, please do join us on Monday because one practice paper we'll be solving before Diwali so that at least you have some clarity before the festivities begin, right? So yes, if you like this video, please give it a thumbs up. Thank you so much for watching. We'll be meeting you super soon on Monday. Till then, stay safe, take care, bye bye. Bye guys.